اگر آپ کی رات کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو آپ بہت ہی بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت میں اللہ کا ایک نام پڑھ لیا تو زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبت، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور سمجھیے گا۔ کیا آپ نے کبھی بھی رات کے سکون بھرے سناٹے میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ یوں ہی آنکھ کھل جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ٹھہر کر سوچا کہ ہماری نیند اس وقت کیوں ٹوٹتی ہے جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے؟ دوستو، یہ نیند کا ٹوٹنا نہیں بلکہ یہ رب کا بلاوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہے میں اسے بخش دوں۔ شاید اللہ آپ کو جگا رہا ہے، شاید آپ کی روح سجدے کے لیے بے چین ہو اٹھی ہے، تو اٹھ جائیے، اس پکار کا جواب دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لمحہ آپ کی تقدیر بدل دے۔ آج کی اس مبارک ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور روحانی سوال کا جواب تلاشیں گے۔ آخر رات کے تیسرے پہر میں یعنی تقریباً 3 سے 5 بجے کے بیچ رات میں ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقیقت بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی ہوگی۔ ایک ایسی حقیقت جو آپ کی روح کو جھکجھور کے رکھ دے گی اور شاید آپ کی پوری زندگی کو بدل دے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج کی یہ رات آپ کو رب کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کی آنکھ اس مبارک وقت میں کھل جائے تو اس لمحے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ایک بہت باریک اور سمجھداری سے سوچنے والا موقع ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت کو آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں، اس لیے اسے توجہ سے سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ علم آپ کی نیند نہیں بلکہ آپ کی قسمت کو جگا دے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ کبھی رات کے تیسرے پہر میں یعنی 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ کھل جاتی ہے، لیکن پھر اگلی ہی رات میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ بلاوا ہر روز نہیں آتا ہے، جب آئے تو اسے گوانا مت، کیونکہ یہ رب کی رحمت کا خاص پیغام ہوتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ روز ہوتا ہے، ہر رات تقریباً 3 سے 5 بجے کے بیچ آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس پر کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید یوں ہی نیند ٹوٹ گئی ہوگی، لیکن دوستو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، ایک الہی پیغام ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رات کے اس سکون بھرے لمحے میں آپ کی آنکھ کا کھلنا شاید اس بات کا اشارہ ہے کہ رب آپ کو اپنے سجدے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو کھولتے ہیں جو آپ کی روح کو بھی جھکا دے اور دل کو رب کی طرف موڑ دے۔ اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ صرف میرا تجربہ یا اندازہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ جی ہاں، میں آپ لوگوں کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں گا کہ اس وقت میں یعنی کہ رات کے تیسرے پہر میں ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے اور اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو ہم علم اور روحانی اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کے دل میں اس بات کی سمجھ اور محبت پیدا ہو سکے۔ جب اگلی بار رب آپ کو جگائے تو آپ نیند نہیں سجدے کی طرف بڑھ جائیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس مبارک روحانیت سے بھری باتوں کی طرف بڑھیں، آپ سے ایک چھوٹی سی مگر بہت ہی پیاری گزارش ہے، صرف اور صرف ثواب کی نیت سے، اس نیک عمل کو آگے بڑھنے کی نیت سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا اور اگر ہو سکے تو اسے شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک کلک سے کسی کی راتیں سجدے میں ڈل جائیں اور آپ کو بھی اس کا بے پناہ ثواب حاصل ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی کو بھلائی کی طرف راہ دکھائے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو۔ بس مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اوروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں کی رات کے سناٹے میں تقریباً 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ آنکھ کھلتی ہے وہ لوگ پریشان نہ ہو بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ دل سے خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نشانی ہے آپ کی خوش قسمتی کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، تو دوستو سنیے، رات کے اس وقت میں آنکھ
आँख का खुलना असल में एक रब्बानी पैगाम है, एक अल्लाह की तरफ से दिया गया खास बुलावा है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा खोल देता है और फरिश्तों को जमीन पर भेजता है कि देखो कौन है जो मुझे पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करता है, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी चाहता है ताकि मैं उसे अता कर दूं। उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं और उसे बख्श दिया जाता है। तो भाइयों, जब अल्लाह खुद आपको जगा रहा है तो समझ लीजिए ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इनायत है। इसलिए खुश हो जाइए क्योंकि रब ने आपको उठाया है, अपने सजदों के लिए बुलाया है। दोस्तों, जब आपकी आंख रात के तीसरे पहर में यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है तो ये सिर्फ जगना नहीं होता है बल्कि ये एक इशारा होता है, एक आगाह करने वाला पैगाम आपको रब की तरफ से मिलता है, क्योंकि ये वो वक्त है जिसे हदीस पाक में लैलतुल कद्र की रात का हिस्सा कहा गया है। रात का वो मुबारक लम्हा जब अल्लाह ताला अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है आसमान और दुनिया की तरफ तशरीफ लाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करता है कि मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगता है मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहता है मैं उसे माफ कर दूं। तो सोचिए, जब आपका रब खुद आपको जगा रहा है तो क्या आप अब भी सोए रहेंगे या उसके पुकार पर लब्बैक कहेंगे। ये वो मुबारक वक्त है जब दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है, जब रूह को सुकून मिलता है और दिल को अल्लाह की रहमत छू जाती है। अगर कोई बंदा इस लम्हे में सिर्फ एक छोटा सा अमल कर ले, सिर्फ एक दफा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के किसी भी नाम का वजीफा कर ले, आप अपने दिल की ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएं सिर्फ दिल से अल्लाह के सामने रख दें तो अल्लाह ताला उस एक अमल की बदौलत तो उसके रिस्क में बरकत देता है, गुनाहों की मगफिरत भी फरमाता है और अगर दिल से मांगा गया है तो उसका बेड़ा भी पार कर देता है। क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मांगो मैं दूंगा, पुकारो मैं सुन रहा हूँ, तौबा करो मैं बख्श दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वक्त को हल्के में ना लें, यह अल्लाह का दिया हुआ खास मौका है जिसे समझने वाले ही समझते हैं। मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला अपने बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। उस मुबारक लम्हे में जब हर तरफ सन्नाटा होता है, अल्लाह ताला आसमान और दुनिया की तरफ तशरीफ लाता है और खुद इरशाद फरमाता है कोई जो मुझसे मांगता है कि मैं उसे दे दूं, है कोई जो मुझसे बख्शिश चाहता है मैं उसे माफ कर दूं, है कोई जो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुन लूं। मगर अफसोस, उसी वक्त शैतान हमारे जहन में दुनिया की फिक्रें भर देता है, हमें वापस सुला देता है और हम उस पुकार को, उस बुलावे को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। न सजदे में झुकते हैं, न आंसू बहाते हैं, न दुआएं करते हैं। क्या हम इतने गाफिल हो गए कि जब रहमत पुकार रही हो तब हम खामोशी से सो रहे हो? अगर किसी इंसान की आंख रात के इस मुबारक वक्त में यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुल जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह ताला ने उसे एक खास दावत दी है। ऐसे में उसे फौरन कलमा तैयब का जिक्र करना चाहिए क्योंकि उस वक्त में अल्लाह की रहमतें खुलकर बरस रही होती हैं। अगर तौफीक मिले और बदन में ताकत हो तो उस मुबारक लम्हे में तहज्जुद की नमाज को पढ़ना चाहिए क्योंकि तहज्जुद अल्लाह के सबसे करीब करने वाली नमाज है जिसे हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं छोड़ा करते थे। लेकिन अगर नमाज न पढ़ सके तो कम से कम एक छोटा सा मगर असरदार वजीफा जरूर कर लें। और वो वजीफा क्या है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी आंख रात में 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो समझिएगा ये आपकी किस्मत की दस्तक है। अब ये आप पर है कि आप उसे कबूल करते हैं या फिर सोकर गवा देते हैं। अगर आपकी आंख रात के उस वक्त में खुल जाए यानी कि 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो उस वक्त में ये छोटा सा मगर बहुत ताकतवर वजीफा जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पूरे यकीन और भरोसे के साथ या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना सिर्फ 5 बार पढ़ लीजिएगा। हर बार इस लफ्ज को अपने दिल की किसी एक ख्वाहिश के साथ जोड़ लीजिएगा।
चाहे वो रिज़्क की हो, चाहे वो शिफा हो, चाहे वो आपका कोई मकसद हो या फिर कोई कामयाबी हो या कोई परेशानी हो, बस दिल से अल्लाह को पुकारिए उसी एक लफ्ज से, और फिर आखिर में 3 बार आप दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा। यही वो वक्त है जब आपकी दुआ, आपका वजीफा, आपके दिल से किया गया जिक्र अर्श तक पहुंचता है और अल्लाह ताला फरमाता है, मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए काफी हूँ। उस मुबारक वक्त में जब आप वजीफा पूरा कर लें तो सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगिए, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। हमसे हर रोज जाने अनजाने में नाफरमानी हो जाती है, और यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को खुद पुकारता है, कोई है जो मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। मेरे भाइयों और बहनों, उस वक्त में अगर आप सिर्फ दुनियावी चीजें मांगोगे तो हो सकता है आपको वो मिल जाएं, लेकिन आखिरत का फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तौबा कर लीजिएगा। अपने अजीज और अकारिब के लिए जो इस दुनिया से जा चुके, उनकी मगफिरत के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, तू अपने भाई के लिए जो मांग रहा है मैं तुझे भी वही अता कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आप अपनी हाजतें, अपनी जरूरतें, अपने दिल की बात सब कुछ अल्लाह के सामने रख दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त अल्लाह इनकार नहीं करता है। बस दिल से मांगिएगा, यकीन और भरोसे के साथ। मेरे भाइयों और बहनों, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो बस इतनी सी, जब भी आपकी आंख रात के वक्त में खुल जाए तो सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिएगा, और सिर्फ उसी वक्त नहीं बल्कि हर रोज रात को सोने से पहले अल्लाह ताला से तौबा जरूर किया करें। अपनी गलतियों को मानकर अपने रब से माफी मांगना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर आपने तौबा कर ली, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी, तो यकीन मानिए आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आपकी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। दुनियादारी के पीछे मत भागिए, क्योंकि जो कुछ है यही रह जाएगा। ना शोहरत साथ जाएगी, ना दौलत साथ जाएगी, सिर्फ आपके अच्छे अमाल आपके साथ जाएंगे। आपकी नमाज, आपकी तौबा, आपकी नेक दुआएं आपके साथ जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत आखिरत का भी इंतजाम कर लो, क्योंकि दुनिया तो फानी है मगर आखिरत हमेशा की है। अगर आपकी आंख रात के 3 बजे से लेकर रात 5 बजे के बीच खुलती है तो ये कोई आम बात नहीं है, ये अल्लाह का एक खास इशारा है। उस वक्त अगर तहज्जुद का वक्त बचा हो तो उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर लिया करो, क्योंकि ये नमाज रब को सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर तहज्जुद का वक्त नहीं है तो जो वजीफा बताया गया है उसे पूरे यकीन के साथ अदा कर लिया करो। अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों की तौबा से बहुत खुश होता हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आँख क्यों खुलती है, और ये भी जान चुके होंगे कि उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस इशारे को नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोते रहते हैं और अल्लाह की रहमत लौट जाती है। मैंने आप लोगों को पूरी मोहब्बत और दिल से समझाने की कोशिश की है। अब ये आप पर है कि आप इस मौके को कितना अहमियत देते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे वही ना रोकें, बल्कि अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी एक शख्स ने भी तहज्जुद की नमाज को अदा कर लिया, एक बार इस वजीफे को कर लिया, तो यकीन मानिए आपको वो सवाब मिलेगा जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। कयामत के दिन जब सब अपने अमाल में लगे होंगे, आपके नामाए अमाल में से ऐसे नेकियां दर्ज होंगी जो आपने कभी कमाई ना होंगी, क्योंकि आपने भलाई की बात आगे पहुंचाई थी। बस सवाब की नियत से इसे शेयर कर दीजिएगा, शायद इसी बहाने से आपकी मगफिरत का रास्ता बन जाए। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया की हजारों बातें हम सुनते हैं, लेकिन जरा सोचिए कितनी बार हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सीधी राह पर चले और आपका दिल को सच्चा सुकून मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक वजीफा पावर चैनल नहीं है, बल्कि आपकी आखिरत संवारने का जरिया बन सकता है। तो इस्लामी मालूमात, वजीफे और रूहानी बातें हर दिन पाने के लिए आप वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भलाई की इस सच्ची राह में हमारे वजीफा पावर के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।